بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹرز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ آج ایک بہت ہی اسپیشل اوکیزن ہے جس کے لیے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تقریباً 1 سال پہلے, اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور یہ موقع اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایک کتاب لانچ کی گئی, آپ نے اس کا ریویو بھی دیکھا, اور مجھے یہ کتاب تقریباً 2-3 دن پہلے ملی, تو میں نے اس کو 2 دفعہ I've gone through this book. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے, اور جنہوں نے بھی اس کتاب کو مرتب کیا, منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, ISPR, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ this book should be placed in the libraries of the schools, colleges and the universities all across Pakistan. اور اس کا ڈیجیٹل ورژن should also come out very soon, تاکہ ہر ایک کی, پاکستانی کی جو یہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر ہے, اور باقی لوگ بھی جو پاکستان کے معاملات کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے معاملات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکیں what is the truth. This book fundamentally is a journey کہ پاکستان کی انسیپشن, پاکستان کے بارے میں سوچا کیوں گیا, کیا ہوا, کیا وہ محرکات تھے کہ ایونچولی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آزاد ریاست چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے طرز زندگی کے مطابق, اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کا جو پہلا بڑا امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی 1857 کی جنگ آزادی, جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے, بٹ جنگ آزادی آف 1857 میں جو جنگ لڑی گئی, اس کے بعد ایک برٹش انڈیا میں انگریز نے اور ہندو نے مسلمان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. بڑی کوششیں کی مسلمانوں نے, علی گڑھ یونیورسٹی بنی, اور چیزیں بنی کہ مسلمان جو ہیں دوبارہ علم حاصل کریں, لائم لائٹ میں آئیں, لیکن مسلمز ور سائیڈ لائن. دوسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا 1905 میں, بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا, ایک ایسٹ بنگال, ایک ویسٹ بنگال. ایسٹ بنگال جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ, اور ویسٹ بنگال جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ہی اس پارٹیشن کو پھر ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور 1905 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے, اور 1906 میں پہلی دفعہ مسلم لیگ, جو وہ جماعت تھی جس نے پاکستان بنانے کی موومنٹ لیڈ کی, قائد اعظم اس جماعت کو لیڈ کرتے تھے, ایونچولی پہلے وہ اس میں نہیں تھے, بعد میں اس میں آئے, اور 1906 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. بہرحال یہ سفر لمبا ہے. تو علامہ اقبال 1930 he made the first assertion, پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے بات کی کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست چاہیے. اور پھر یہ سفر شروع ہوا, اور 1947 میں by the grace of Almighty this journey was completed on the 14th of August 1947, and the great state of Islamic Republic of Pakistan came into being. لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے معاملات جڑ گئے. تقسیم ہوئی 100 سال میں, کوئی اتنی بڑی مائیگریشن, اور موسٹ آف اٹ واز اے فورسڈ مائیگریشن ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوئی ہو, اور اس کے ساتھ جو پھر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. لوگ نارملی مثال دیتے ہیں, روانڈا میں پچھلے 20-25 سال پہلے ایک مائیگریشن ہوئی تھی جس میں کہتے ہیں کوئی 10 لاکھ آدمی جو تھے وہ مارے گئے, لیکن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جو 1947 میں جو واقعات پیش آئے اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں, اس میں شاید 1 ملین سے 2 ملین, 10 سے 20 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی ان کی جانیں گئیں, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بھارت سے پاکستان میں آئے. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فرسٹ ہینڈ واقعات اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے سنے ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں آئے. پاکستان کا سٹارٹ یہ تھا کہ بہت سارے ریفیوجیز لٹے پٹے, زخمی, بری حالت میں پاکستان میں آئے. پاکستان کو ہندوستان نے کچھ ریسورسز دینے تھے, ریسورسز کی ڈویژن تھی, وہ ڈویژن نہیں ہوئی, انہوں نے وہ ریسورسز نہیں دیے. اور خیال یہ تھا, بہت سارے
इंडियन उस वक़्त के जो लीडर थे हिंदुस्तान के, उनका ख्याल ये था कि चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने में ये रियासत खुद ब खुद गिर जाएगी अपने प्रेशर से। ना इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री थी, ना इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो ये रियासत चल नहीं सकेगी, ये गिर जाएगी। ये रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ चली, एक मजबूत रियासत के तौर पे आज खड़ी है। उसके बाद तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन को वायलेट करते हुए कश्मीर डोगरा महाराजा ने उस वक़्त एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हम सारे इसको मान जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। कुछ किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लेम करते हैं भारतीय के साइन हुआ था 26 या 27, उस दिन महाराजा वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड टू जम्मू। तो जो आदमी ट्रैवल कर रहा होता है बाय रोड, वो दिल्ली में जाके साइन नहीं कर सकता। एंड लेस्टर लैम इज नॉट अ पाकिस्तानी, लेस्टर लैम, ही रोट दिस इन हिज बुक। कश्मीर का मामला उस वक़्त से पाकिस्तान के साथ जुड़ा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त फैसला किया, इट वॉज हिज कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, एंड ये फैसला उन्होंने किया कि हम कश्मीर में अब अपनी फोर्सेस लेके कन्वेंशनल और जो हमारे ट्राइब्समैन थे उनके साथ आप जाएंगे। तो ये कमिटमेंट कायद आज़म ने दी थी, और आज भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये उस वक़्त उस कमज़ोरी के, आज तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत इस्लामी रियासत है, उस वक़्त कमज़ोरी के आलम में भी उस बड़े लीडर ने यह फैसला किया। और पाकिस्तान के पास जो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, बट ये फैसला कायद आज़म ने किया था। डिस्प्यूट आज भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मौजूद है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान उस एक फैसले की वजह से आज आज़ाद है, भारतीय तसल्लुत से बाहर है। एक दो बातें मैं ज़रूर करूँगा। व्हाट हैज़ हैपन टू इंडिया, इंडिया में क्या हुआ है। एक जमात है वहाँ पे, RSS उसका नाम है, 1925 में ये सामने नज़र आना शुरू हुई, जो कि हिंदू सुप्रीमेसी पे बिलीव करती थी, और वो चलते चलते इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई। पहले वो हावी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की अंदर शायद मौजूद थी, बहुत डीप इनसाइड उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई ग्रेजुअली। और पिछले 10-15 साल में, 12 साल में उनका पूरा तसल्लुत है इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे, इंडिया की गवर्नेंस पे, इंडिया की इंफॉर्मेशन स्पेस पे, और इंडिया की जुडिशल स्पेस पे। दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट, एंड दैट इज़ हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पार्टी, बिलीविंग इन हिंदुत्व, बिलीविंग इन अखंड भारत। और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया अखंड भारत का, जिसमें सारा सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक शामिल। और ये कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है जी, हम उनके साथ उठे बैठे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कभी आज तक, पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड पीस। बहुत सारी कोशिशें पीस के लिए हुई हैं, सारी कोशिशों को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जगह पे स्कटल किया गया। चूंकि इसमें बहुत बच्चे भी बैठे हैं हमारे, एक बात मैं कहता चलूँ, दिस वाज बिफोर मार्का हक। हमारी अपने कुछ भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसील तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको वर्बैटम बात बताना चाहता हूँ। राम महादेव उनका नाम है, इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द BJP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इन अ मीटिंग ही सेड दिस ओपनली। उन्होंने कहा जी, अंग्रेज ने सब कॉन्टिनेंट से जाते हुए 3 लाइनें छोड़ी। एक लाइन थी मैकमोहन लाइन, जो इंडिया चाइना के दरमियान में, एक लाइन थी ड्यूरेंट लाइन, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में है, विच वी कंसिडर एज इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड यू नो व्हाट ही सेड, व्हिच इज मोस्ट प्रोफाउंड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है सबके समझने के लिए। उन्होंने कहा कि एक लाइन रेड क्लिफ लाइन थी, जो कि असल प्रॉब्लम। रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ये मैं आज पिछले आपको इस BJP की सोच बता रहा हूं। सो दिस वेयर वी स्टैंड। दूसरा ढोंग रचाया गया कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट है, कश्मीर की मूवमेंट को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया गया। ऐसे नहीं है, कश्मीर इज अ फ्रीडम मूवमेंट।
It stands as a freedom movement. Pakistan has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because ye promise was given by our forefathers, the father of the nation. You can't run away from that promise. Indians ने at the same time एक massive पाकिस्तान के अंदर हमेशा किया, ये आप लोग आई एम श्योर जो बुजुर्ग हजरात इधर बैठे हैं उनको तो पता है, पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस इज नॉट जस्ट 1971, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको ने दिखाया. दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक. इसमें 2-3 मूवमेंट्स थी जो चलती रही पाकिस्तान में, खास तौर पे बलूचिस्तान में और कुछ केपी में, जिनमें एक पश्तूनिस्तान की मूवमेंट थी जिसका हेडक्वार्टर एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जलालाबाद में. बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चली 70s में, वो काबुल में पाई जाती थी. गॉड ब्लेस हिज सोल एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, आज मुझे मौका मिल गया, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 3-4 मिनट और फिर देन आई विल फिनिश. एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे मीर हज़ार खान बेजरानी, इधर मेरे बलोच दोस्त भी कुछ बैठे हैं, दे वुड नो हिम, इज नो मोर. एक किताब भी लिखी, आई मेट हिम पर्सनली, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई. एज दे से दिस बुक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. A picture speaks 1,000 words. जो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई, that spoke 100,000 words. This is a picture of Mir Hazar Khan himself, because he was a militant commander of that movement. बैठे हैं हम हमारे बलोच दोस्त, उनको पता है, in the 70s. God bless his soul is no more. बाद में उनकी दोस्ती होगी पाकिस्तान के साथ. और भी लोग थे वहाँ पे. तो एक पिक्चर थी काबुल में जहाँ पे उस ज़माने में अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी, उसका नाम था खाद. उनका चीफ बैठा हुआ है, रॉ जो आज भी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका स्टेशन चीफ बैठा हुआ है, और केजीबी जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहाँ पे बैठे हुए उनके साथ. बाकी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई. इससे, इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए. So the point I'm to make is that this effort of the Indians is going on for a long time, and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ. I have to say those things so that you carry it in you and you should know it's a fact. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय, दीपक कौल उसका नाम था. 2006-7 की बात है. ही वाज आई थिंक देयर कमर्शियल अटैचे और व्हाटएवर. तो वो यहाँ से तशरीफ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ दिल्ली बाय रोड. रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. चूंकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न. तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है. दिस इज 2007. एंड देन व्हाट इज गोइंग ऑन वो चल रहा मामला. नाउ कम टू मार्का हक बनियानुल मरसूस. इट वाज नॉट, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, कि एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए. नो, इट वाज अ पॉलिसी ड्रिवन false flag operation. It was an Indian policy by which they wanted to go by it. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका था कि हर लिहाज, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमजोर करेंगे, एंड टेररिज्म का एक इल्जाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे. सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग. उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था to conduct such a false flag operation. So, in my opinion, in my assessment, it is a policy-driven incident which the Indians did. वो पहले भी ये काम करते रहे. छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने रिसेंट मेमोरी में जाना है, 2000 का ये वाकया है. 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए. समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. So it's a policy-driven incident. It was a state policy. The policy failed because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फर्क इतना है, क्योंकि आजकल we live in the post-truth world, social media, ये है वो है. Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025.
the lies and the truth, failure of policy and success of policy. और यहां से वो चीज शुरू होती है. उसके बाद पॉलिटिको डिप्लोमेटिक फ्रंट एब्सोल्युटली, चूंकि ट्रूथ पे बेस्ड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, द एंटायर नेशन, दे ऑल स्टूड टुगेदर एंड योर नैरेटिव बेस्ड ऑन ट्रूथ. और बड़ी साफ बात कि यार ये है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी कराएं, वी आर रेडी टू कोऑपरेट. दे रैन आउट, दे डिडंट वांट इट बिकॉज उनकी पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा था. इट वाज अ फेलिंग पॉलिसी. सो पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीट किया. मिलिट्री, दे वेंट अहेड, एंड मिलिट्री, इट वाज अ डिजास्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th 7th night to 10th morning. It was a disaster for India. I think, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, यहाँ तो उनकी मिलिट्री के ऊपर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो वजन डाल दिया था जो वो उठा नहीं सकते थे, या they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. Information campaign, वो इतना stupid propaganda था कि उससे ना सिर्फ जो वो कह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेचर भी डाउन कर लिया. पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड, साफ बात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, ISPR, क्लियर बात, आर मीडिया एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल. जो ठीक बात है वो, नो ह्यूब्रिस, नो नॉनसेंस, एंड पाकिस्तान स्टूड टॉल. Congratulations to the entire Pakistani nation. आखिरी बात, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. Pakistan हमेशा जिंदाबाद.